السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہازی میڈیا اور ہمارے ساتھ ابھی ایک تاریخی شخصیت موجود ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے الحاج ماسٹر شمس الضحیٰ صاحب۔ ابھی وہ دہلی میں موجود ہیں اور جہازی میڈیا سے مزید گفتگو ہے۔ آئیے ہم ان سے کچھ تاریخی سوالات کرتے ہیں۔ تو حاجی صاحب، آپ کا ہمارے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جمعیت علماء ہند کے 5ویں امیر الہند کا انتخاب ہوا ہے، اس موقع پر آپ دلی میں ہیں، تو کیا آپ اسی میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں؟ جہاں بلا شبہ اہمیت کی پیش نظر حالات منظر رکھتے ہوئے امیر خامس کے انتخاب میں میرا آنا ہوا۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے حاجی صاحب جو ہے امیر الہند خامس کے انتخاب میں دہلی تشریف لائے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ان کی عمر 91 سال ہو چکی ہے اور انہوں نے ہمارے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے کے جتنے دیگر بڑے اکابرین تھے سبھی سے انہوں نے فیض اٹھایا ہے، ان کے دیکھے ہوئے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے قوم ملت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے عمارت کی ایک تاریخ کو دیکھا ہے، اب تک جتنے امیر الہند کا انتخاب ہوا ہے تقریباً سب ان کی زندگی میں ہوا ہے، تو ان سے آئیے معلوم کرتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے 5واں امیر الہند کا انتخاب ہوا ہے، تو کیا آپ شروع انتخاب سے یہاں پر آ رہے ہیں یا پہلی بار تو آئے ہیں آپ؟ دلی مانا تو اللہ سے ہمیشہ رہا۔ سب سے پہلے مولانا حبیب الرحمان صاحب اول، دوسرے نمبر پر فدا ملت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مولانا مغرور محتمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا، اور ابھی جب 5واں انتخاب مجھے دعوت میں ہوا تو حضرت مولانا خالد اسد صاحب دعوت میں کا کہوں امیر ہند ہوئے، اور مفتی سلمان صاحب جو ہے شاہی بنیاد ہوئے۔ تو آپ نے سنا کہ جتنے بھی امیر الہند کا انتخاب ہوا ہے حاجی صاحب ان تمام محفلوں میں شریک رہے ہیں، اور آج جب کہ 5واں امیر الہند کا انتخاب ہوا ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا، تو اس انتخاب میں بھی یہ شریک رہے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ عمارت شریعہ کا جو ادارہ ہے، عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، اس کو بھی قائم کیے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارے حاجی صاحب جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں بھی ایک محکمہ شریعہ کے ذمہ دار رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ عمارت شریعہ کی محکمہ شریعت کو اور وہاں کی تاریخی عمارت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا تاریخ رہی ہے؟ یہ جمعیت علماء ہند کی تحریک رہی، ان کامیابی حالات کے اعتبار سے نہیں ملی۔ اس زمانے میں اس کے محرک ابو المحرک مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا مناسب ماحول نہیں ہے، انہوں نے مدرسے علماء جہاد کے نام پر جہاد قائم کیا، پھر ان کی کوشش رہی کہ ملکی پیمانے پر ہو، کچھ حالات سازگار آئے۔ تنظیمی اعتبار سے نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا۔ اس میں جہاں اور چیزیں تھیں، بہت اہم ایجنڈا جو استعمال کر رہا ہے شروع سے آج تک، کہ صاحب شریعت کا کس طرح نظام چلے، اور اس میں عمارت کی بات، دارالقضا کی بات یا اور کچھ چیزیں ہیں، عالی مسائل ہیں، اس پر زیادہ توجہ ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف مالکہ سے یہ آئے تو جہاں اور کچھ بیان تھا یہ اہم بات تھی، کیونکہ ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی، اس کے باوجود نے فرمایا کہ یہ اہم مسئلہ ہے، اگر میری حالت ایسی ہے چار پائی بھی مجھے لے چلو ان یہ کام انجام دیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مولانا ابو المحسن رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت شریعہ کا نظام بہار میں چلایا، وہ دراصل شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر تھی؟ جی بالکل، انہیں کی تحریک سے جب اس کے بعد وہ حضرت کا سال ہو گیا 1940 میں، 1920 میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، مولانا ابو المحسن رحمۃ اللہ علیہ 1940، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ اہم چیز ہے، تو دشواری محسوس ہوئی، انہوں نے تب جو ہے جہاد صوبائی پیمانے پر انہوں نے جو ہے 26 جون 1921 کو وہاں پر قائم کر دیا۔ اس میں عام شعبہ دارالقضا کا تھا، کئی شاخیں جہاں پر قائم ہیں، حکومت کا دباؤ پڑنے لگا، سختیاں ہونے لگی، سارے لوگ اس سے نکل گئے، انکار کر گئے۔ اچھا، اس سے یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتے ہیں اب آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی اور انہوں نے کوشش کی کل ہندی سطح پر بنانے پر، لیکن نہیں بن سکا۔ مولانا ابو المحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ریاستی سطح پر اس کا آغاز بہار سے کیا،
तो इसमें सवाल ये है कि ये सारे अकाबिर हमारे जमीयत के थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह सदर जमीयत उलमा हिंद थे, पहले मुस्तकिल सदर बने हैं। अबुल महसिन रहमतुल्लाह अलैह ये नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद रहे हैं। तो ये सारे अकाबिर जमीयत के थे। तो क्या इमारत शरिया बिहार जमीयत उलमा हिंद से अलग है या फिर वो जमीयत उलमा हिंद के एक पार्ट है? आप क्या समझते हैं? जमीयत उलमा हिंद के जहाँ बहुत सारे शोबे थे उसमें से एक अहम शोबा था, और उसका सबूत इस तरह मेरे जहन में है कि 3 अमीर शरीफ का जो इंतखाब हुआ पुरअमन माहौल में, उसका कोई इख्तलाफ नहीं, और उसके बाद जो है कराची में हुआ, पटना में ये जो हुआ। 3 इंतखाबात हुए इमारत शरिया बिहार पटना के, तो क्या वो जमीयत के लोगों ने कराए, जमीयत ने कराया या उन्होंने खुद कर लिया? नहीं, जमीयत के लोगों ने कराया था, लेकिन हालात उस जमीयत के लोगों ने क्यों बनाया? क्या कोई दस्तूर है या क्या है इससे? हाँ, क्योंकि वो इमारत शहर खास एजेंडा था जमीयत उलमा हिंद का, और इसलिए चाहे एक ही स्टेट में हो, पर बिहार अल्लाह का शुक्र था इस तरफ तवज्जो रही। लेकिन हालात को साजगार नहीं मालूम है। तो मौलाना नूरुल्लाह साहब जो सदर जमीयत उलमा बिहार थे, उन्होंने हालात नासाजगारी को देखते हुए दरभंगा में प्रोग्राम रखा, और उस वक्त के मौजूदा वक्त नाजिम उम्मी हज़रत मौलाना हफीजुर रहमान साहब जो साबिक जमीयत उलमा का था, वो तशरीफ ले गए। मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब राजा का इंतखाब हुआ, काम चल रहा था, लेकिन जो भी कुछ हालात है उस वक्त हज़रत अमीर शरीयत जमीयत उलमा बिहार मुंगेर जिला के वो सदर थे। हालात कुछ दुश्वारियाँ हैं, उसमें जाना चाहता, उन्होंने उसे इस्तीफ़ा दे दिया, सिर्फ इमारत होकर रह गए। इन्होंने एक दस्तूर मरतब करना चाहा, उस दस्तूर की कॉपी इन्होंने जमीयत उलमा को भेजा और अपने लोगों में भेजा। अगर जमीयत की कोई अहमियत नहीं थी तो दस्तूर कॉपी जमीयत उलमा के ऑफिस में देना चाहिए था। जान हमारा सवाल ये है कि अभी कुछ पुरानी तहरीर हमारे साथियों ने दिखाई बतलाई है कि पहले जो इमारत शरिया था उसमें लिखा रहता था तहत दिल्ली जमीयत उलमा हिंद, यानी वहाँ जो भी काम होता था वो सब के सब जमीयत उलमा हिंद की ज़ेर निगरानी ज़ेर साया होता था। तो ये टैग उन्होंने क्यों हटा दिया? ये मजलिस आमला का इलाज बुलाया गया इस जिले में, उसमें मौलाना अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए, उनके साथ उस लकीर के जो इंजन थे अजहर इमाम फकरी साहब वो साहब तशरीफ लाए थे। यहाँ इंजन पर बात हुई, हज़रत अमीर शरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह दौरान यह निकल गए या क्या करते कि आपकी मजलिस है, जितनी आप तजवीज़ पास करें वो आप तक है, वहाँ मेरी इमारत होगी, वहाँ कहीं कुछ चलने को नहीं है बिहार में, वहाँ इमारत शरीफ के दफ्तर में। और जमीयत उलमा जो तजवीज़ आ रही थी, लोगों में दुश्वारी महसूस क्या हो, आखिर खस्म तजवीज़ 2 जिम्मेदार मौलाना मसूद रहमान साहब जो है चंपानी, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब कतरा मचक नाशी, ये 2 नुमाइंदा वहाँ से आए। अगर इमाम फसील साहब चूँकि मुझे दावत रहमान मिला नहीं था, मैं स्कूल से बाहर आया था, उनके इशारे पर मैं शरीफ होने की ख्वाहिश थी और हमेशा हर इमारत की जिसमें जाया करते थे। मैं चला गया, क्योंकि गैर दस्तूरी गया था, मैं कुछ खाना खा के गया। मौलाना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो सब काजी शरीयत थे, उन्होंने बहुत जोर डाला कि तुम यहाँ आए, खा के नहीं आना चाहिए। वो ज़रूरी बात बताइए, हुआ क्या उसमें? अब उसके बाद है जब इब्तदाई तौर पर मौलाना मुजाहिद साहब ने यह बताया कि दस्तूर की बुनियाद जो सब इमारत की बुनियाद हुई उसे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं 39 ऐसे कुछ नंबर था, उनको बताया कि इसमें इमारत का मसला रहेगा, अपने जो है कोई मुबल्लिग कोई जिम्मेदार इस बात नहीं करेंगे। उसका मौलाना अहमद अली साहब राशि वाले वो खड़े भी, उन्होंने बताया कि देखिए एक चीज़ आला और ये क्या मकसद, जब मकसद हासिल होता है आला इज़्ज़त नहीं होती है। मिसाल के ऊपर बगदादी पढ़े, हमें तो ये बताइए इख्तलाफ क्या हुआ? वो उतना लंबा फिर हमारे क़ारीन इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ इख्तलाफ ही रवैया रहा बताइए। तो उसमें यह हो गया कि उन्होंने बता दिया कि जमीयत जो था जो कुछ उन्होंने किया, अब इमारत कायम हो गया, इसलिए जमीयत की अहमियत नहीं रह गई, ये कहना था। उन्होंने महफिल में ये बात आई कि इमारत कायम हो गया, जमीयत की अहमियत नहीं रही। इमारत तो जमीयत तो पहले से कायम थी, इमारत पहले से थी। मौलाना उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह बर्दाश्त नहीं कर सके, झल्ला उड़ गए, क्या मोरी मिन्नत कौन सा दायरा पैदा हुआ जो तुमने दस्तूर बनाया? ये क्या इमारत का ज़माना मिल गया, कहीं कुछ नहीं, दस्तूर पर जो बनाया जो कुछ बहुत फसाद की जरूरत है। एक बात सुन लो,
जितने जमीयती हैं सारे इमारती हैं, जितने इमारती हैं वो जमीयती नहीं हैं। और बाकी तीसरा है मैं सबसे पहला कारकुन हूँ, जमीयत का भी और इमारत का भी। उन्होंने सरदार साहब ने मुझे लाया वहाँ से, मेरे बाद जो आए तो सुनो, मैंने तस्दीक कर दी, मुझे शुरा की। उन्होंने फरमाया कि आप हुजूर अगर ये गलत है तो आप तो तस्दीक करते हैं कारकुन लिए। जब जमीयत की अहमियत नहीं है तो जमीयत के जरिए तुम्हारा इंतखाब हुआ है, इसलिए बातिल है, रद्द है, तुम अमीर बातिल हो। तो सारी कार्रवाई गलत, इस पर घबरा गए। अब एक तो बताओ ये चीज़, तुमको आज फ़िक़्ह पर अबूर है, रहे तुम अमीर हो किस तरह के, अमीर नहाया हो अमीर आमा हो, इसको बता दो। ये घबरा गए। जब मरकज़ी तौर पर इमारत कायम नहीं है, नफूज़ की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कैसे अमीर हो? अमीर तो शरीफ हुक्म हदीस पाक की रोशनी में है कि 3 आदमी सफ़र करता हो तो एक को अमीर बना लिया। बहरहाल इस एतबार से उन्होंने इमारत से इख्तलाफ किया। अब अगला सवाल आपसे ये है कि बिहार की जो इमारत शरिया है वो एक रियासती सतह पर है, जो उनके बानी थे खुद उनका नज़रिया यही है, तो वो अपने आप को कुल हिंद नहीं कह सकते। अभी जमीयत उलमा हिंद ने कुल हिंद सतह पर अमीरुल हिंद का इंतखाब किया है, तो क्या इस अमीर को वो लोग तस्लीम करेंगे? नहीं, जमीयत उलमा की पॉलिसी इख्तलाफात से बचने की भी हमेशा, जैसे इन्होंने एक कदम यह उठाया जहाँ बिहार में अमीर थी, अमीर थे, इमारत थी, वहाँ इन्होंने दूसरा अमीर में इंतखाब किया। दूसरी रियासतों में सूबों में तो किया, वहाँ पर नहीं किया, ताकि आपस में टकराव नहीं हो। मगर इमारत का इलाज कुछ अलग हो गया। और जिसमें मैं अर्ज करना चाह रहा था, हज़रत मौलाना उस्मान गनी रहमतुल्लाह ने फरमाया एक बात कि देखिए उम्र ने वफा नहीं की, मादाफ्ता साइन बोर्ड तो नहीं लगा, लेकिन कपड़े बनाया गया था कि इमारत शरिया सूबा बिहार उड़ीसा तहतुल नज़ारत जमीयत उलमा बिहार, ये एक ज़ैली शोबा है। इमारत शरिया बिहार ज़ैली शोबा है और उनके मातहत है। अब उसे हर जो कर रहे हैं कि इख्तिलाफ तो पैदा होगा, वो सब तो जो अपनी जगह है, और लोग कुछ और दलील दी, उसके बाद यह मामला अब ख़राब हो गया, माहौल अच्छा नहीं रहा, और बस यहीं से कुछ इख्तिलाफात हुए। और आज ऐसे ही है कि 2 महाल बन गया, कुछ हो गया, तो बहरहाल ये अल्लाह ताला हिदायत। तो अभी उन्होंने क्या नया दस्तूर क्या बनाया कि वो लोग जमीयत उलमा हिंद से बिल्कुल अलग ही रहेंगे? जी, वो खुद मुख्तार इदारा उनका हो गया, मुख्तार इदारा, उन्होंने अपने दस्तूर में तरमीम कर ली। यहाँ तो चलो ठीक है, उन्होंने अपना अलग तरमीम कर लिया, बेहतर है। सन क्या था वो जिसमें ये सब हुआ? तो यार की बात चले तारीख आने पर लिए तारीख में हुआ है। तो जब आप अमीरुल हिंद के इंतखाब में यहाँ पर शरीक हैं और आप भी बिहार झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ के अमीरुल हिंद को बिहार की इमारत शरिया तक आप लेके जाना चाहेंगे? देखिए अभी यह चाहिए, जमीयत उलमा कोशिश तो रहनी चाहिए, बाकी इमारत वाली कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम जब मुल्क के पैमाने पर हर निज़ाम है, शरई निज़ाम चल रहा है, तो आपस में मुतहदा तौर पर हो, मुतफ़क़ा तौर पर हो, इख्तिलाफ गुंजाइश इसकी होनी चाहिए। यानी दोनों मिल करके काम करें, दोनों भी अपनी अपनी यूनिटें बनाए, ताकि जो है इख्तिलाफात पैदा न हो। उन पर कोई इस वक्त में बहुत शदीद ज़रूरत है इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की, लेकिन इख्तिलाफ इंतज़ार की। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मास्टर शम्सुल ज़ुहा साहब, जो 91 साल की उम्र है। इन्होंने इमारत शरिया को भी बचपन से देखा है, जमीयत उलमा हिंद से तो गहरी वाबस्ती रही है, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी खादिम रहे हैं, हिदायत मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के दस्त बाजू रहे हैं, और बिहार और झारखंड के इलाके में हज़रत फ़िज़ाए मिल्लत का दौरा कराने में, वहाँ तक ले जाने में, हज़रत के प्रोग्राम कराने रहा है। इसी तरीके से इमारत शरिया फुलवारी शरीफ का कोई काम ऐसा नहीं है जो उस इलाके में उस ज़माने में हाजी साहब के बग़ैर होता हो। इस ज़माने में भी जब वफ़द आता है तो इमारत शरिया बिहार के फुलवारी शरीफ के हमारे हाजी साहब मेज़बान होते हैं, उनके लोगों का इस्तक़बाल करते हैं, और उनका जहाँ तक मुमकिन होता है हर वक्त के अतबार से, माल के अतबार से, प्रोग्राम के अतबार से ताउन करते हैं। तो ये दोनों इदारों के खैरखा है। इनके ज़माने तारीख़ के कुछ पहलू आपके सामने आए, और इनका आखिरी पैगाम ये है कि हमें इख्तलाफ से नहीं, मिलजुल करके काम करना चाहिए। बिहार की जो इमारत शरिया है वो बिहार की सतह पर अपनी इमारत को महदूद रखना चाहिए, वहीं तक चलाना चाहिए। और जमीयत उलमा हिंद ने जो अमीरुल हिंद का इंतखाब किया है, इस अमीरुल हिंद की इमारत को तस्लीम करते हुए इसकी मातहती में, जैसा कि तहत अव्वल जमीयत उलमा हिंद पहले टेढ़ था,
उस टेक पर अमल करते हुए अपने काम को बढ़ाना चाहिए। अगर हाजी साहब के इस मशवरे को कबूल कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये जो इमारत शरिया बिहार और जमीयत उलमा हिंद में जो एक थोड़ी बहुत फिक्री दूरी समझी जाती है, इंशाअल्लाह ये दूरी ख़त्म होगी, क़ुर्बत बढ़ेगी और उम्मत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर किसी एपिसोड में फिर किसी नए उन्वान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।